Assalamu alaikum students. Today our topic from 8th English is story about Rustum and Sohrab. Rustum and Sohrab is a tragic story from Persia. Persia was the old name of Iran. Rustum is a Persian hero and one of the favorite of King Kaikous. So Rustum is a Iran's hero, as Persia is the old name of Iran and one of the favorite king of at that time of kings favorite at that time of the king Kaikous. Sohrab was the son of the Rustum and Tanmay. Rustum and Sohrab never meets in their lifetime until on the battlefield, as no one else dares to fight with Rustum as he was very brave. So Sohrab is sent to fight with the legendary Persian hero. Though Sohrab knows that he is Rustum's son, but tragically Rustum does not know this fact, who stables Sohrab to death. So for detail, now open your books, page number 11, and we will read the story line by line. Okay, now let's start. Long ago there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustum. He was so brave and fearless, and he had so often saved his country from foreign invasions that he was called the Shield of Persia. The enemies who tried to invade the country fled in fear when they heard the war cry Rustum. तो बहुत पहले की बात है, वहाँ पे जो है पर्शिया में, ईरान जिसको आप बोलते हैं, वहाँ पे एक बहुत ये बहादुर सिपाही रहता था जिसको ये रुस्तम बोलते थे. सॉरी, ही वॉज सो, वो इतना ये था, ताकतवर था और निडर था, और कि वो हमेशा अपनी मुल्क को, अपनी कंट्री को जो है फॉरेन जो भी हमला उस पर करते थे उसकी कंट्री पे, उनसे बचाता था. इसीलिए उसको शील्ड ऑफ पर्शिया भी नाम दिया था, क्योंकि वो उसको बचाता था. एनमी हु ट्राइड, जब एनमी जो भी जो है दुश्मन उस पर हमला करना चाहते थे, वो भाग जाते थे जब वो रुस्तम का वो जंगी आवाज़ सुनते थे, जैसे वो चलाता था रुस्तम, तो वो भाग जाते थे. पर्शिया इज सेफ एज लॉन्ग एज रुस्तम लीड्स अवर सोल्जर, से काइकोस, किंग ऑफ पर्शिया. नो एनमी डेयर थ्रेटन्स अस, इफ एनी डज ही शैल सफर ए क्रशिंग डिफीट. सो पर्शिया जो है, ईरान जो है, वो सेफ है जब तक जो है रुस्तम जो है हमारा सिपाहियों को जो है लीड करेगा. ये कौन बोलता है? ये बोलता है काइकूस, किंग ऑफ पर्शिया, किंग ऑफ ईरान एट दैट टाइम. नो एनमी, कोई भी दुश्मन जो है इस पे हमला करने की जरूरत नहीं कर सकता, कोई हमें डरा नहीं सकता. अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी. क्यों? उनके पास रुस्तम था. Unless Rustum is killed, our armies can never hope to see victory, the enemies of Persia used to say. बोलते थे जो एनमीज, जो दुश्मन थे पर्शिया के, ईरान के, वो बोलते थे जब तक रुस्तम नहीं मरेगा हम कभी भी जीत नहीं सकते. Once in the course of his travel, Rustum met a Tartar princess called Tanmay. They fell in love with each other and married. बोलते एक बार जो है और सफ़र पे निकला था, वहाँ पे वो तारतर जो प्रिंसेस है उससे मिला और उनमें प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली. However, Rustum was not able to live with his wife for a long time. The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustum was in his kingdom, to protect and defend it. So Rustum had to go away from his wife, who was then in the family way. It was with a great sorrow that he parted from her, because it might be many years before he saw her again. At the parting he gave her a precious stone and said, "Whenever you become a mother, tie this stone on the child's arm and keep our marriage a secret." So रुस्तम जब वहाँ से जा रहा था, उसने शादी कर ली तन्मय से, और अब वो जो वहाँ रहने लगे, मगर रुस्तम ज़्यादा देर तक अपनी बीवी के साथ नहीं रह सका, क्योंकि किंग ऑफ पर्शिया जो काइकूस था उसने उसको संदेशा भेजा कि आप वापस आ जाओ, क्योंकि वो अनसेफ फील करता था. तो उसको पर्शिया को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए, सो रुस्तम जो है वो एकदम से अपनी बीवी को वहाँ पे छोड़ के और चला गया.
तब उस टाइम चला गया जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और माँ बनने वाली थी। इट वॉज बहुत उसको छोड़ के चला गया, जबकि उसको पता था कि वो अब बहुत सालों तक उससे देख नहीं सकता। और जब वो उसे छोड़ के जा रहा था तो उसने उसको एक पत्थर दिया, कीमती पत्थर, और कहा जब भी आप माँ बनोगी तो ये हमारे बच्चे के बाजू के साथ बांध देना और हमारी शादी को एक सीक्रेट रखना, राज रखना। In due course, a son was born to Tanmay. Tanmay knew that when the boy grew up, Rustum would be eager to have him follow in his footsteps. Unless she had from Rustum the fact that their child was a boy, he would certainly take away the child. She would then lose her son as she had lost her husband. So Tanmay sent word to Rustum that their child was a daughter. So कुछ देर बाद जो है उसको तन्मय को जो है बेटा हुआ, मगर वो जानती थी कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो रुस्तम जो है उसको ले जाएगा और बिल्कुल अपनी तरह बनाएगा, सिपाही, बहादुर सिपाही बनाएगा। और इसीलिए जैसे उसको पता चलेगा कि उनको लड़का पैदा हुआ है तो उसने क्या किया, और वो अपने बेटे से भी दूर हो जाएगी जैसे वो अपने पति से दूर हुई है, अपने खावन से दूर हुई है। सो उसने क्या किया, उसने रुस्तम को संदेशा भेजा कि उनकी एक बेटी हुई है। तन्मय नेम्ड हर सन सौरभ, which means child of many smiles. Sohrab grew up in a brave and handsome boy. He learned to use the sword and shield and became the skilled art of war. For miles around there was no one who could who could compete with him in the feast of swordsmanship. बोलते हैं तन्मय ने जो है अपने बेटे का नाम जो है सौरभ रखा, जिसका मतलब था चाइल्ड ऑफ मैनी स्माइल्स। और उसने जो है उसको बहुत, वो जब सौरभ बड़ा हुआ बहुत ही बहादुर और खूबसूरत जवान बन गया और उसने जो है सीखा कैसे तलवार चलाते हैं, कैसे खुद को बचाते हैं, शील्ड करते हैं, ठीक है ना, वो सीखा। और उसने जो है जंग के सारे तरीके सीख लिए और दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं था जो उससे compete कर सकता हो, जो उससे हरा सकता हो तलवारबाजी में। One day there came to that country a young warrior who had fought in distant land. He challenged Sohrab to single combat. Sohrab readily agreed to fight with him. As they were getting ready for the combat, the young soldier said to Sohrab, "Before we fight, tell me your parentage. I do not fight in single combat with anyone who is of low birth." The man who had gathered round looked at Sohrab. No one knew exactly who Sohrab's father was. तो एक दिन जो है उस कंट्री में जो है एक और जवान जो है वो आया वहाँ पे, जो क्या बोलते हैं उसको, लड़ने वाला जो है वो वॉरियर जो है वो आया और उसने जो है उसने बहुत सारी जंगें लड़ी हुई थी, लड़ता हुआ आया और उसने चैलेंज किया सौरभ को, ताकि हम एक ही सिंगल कमेंट मतलब एक ही लड़ाई हम करेंगे, एक ही वक्त पे एक भी फैसला कर रहे हैं, कौन जो एक ही बार लड़ेगा उससे पता चलेगा कौन हारा और कौन जीता। और सौरभ ने जो है वो एकदम से मान ली उसके साथ लड़ने के लिए। अब जब से वो लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे तो वो जो यंग सोल्जर सिपाही जो था उसने उसको बोला कि हम जो सौरभ को बोला कि इससे पहले कि हम लड़ाई स्टार्ट करें तो आपको जो है मुझे अपने पेरेंटेज के बारे में बताना होगा, आपके पेरेंट्स कौन है, आपके वालिदैन कौन है, क्योंकि मैं एक सिंगल कम्बैट उससे नहीं लड़ना चाहता हूँ जो एक कम ज़ात का हो। तो मैं जितने भी लोग वहाँ थे वो सब सौरभ की तरफ देखने लगे क्योंकि कोई भी नहीं जानता था एग्जैक्टली सौरभ का फादर कौन है। Sohrab, who did not know the secret of his birth, hung his head in shame. "We shall meet at dawn tomorrow," he said to his opponent and went away. तो सौरभ जो है जो नहीं जानता था कि उसका बाप कौन है, तो उसने अपना सर शर्म से झुका लिया और उसने उसको बोला कि हम कल सुबह मिलेंगे और हम जो है तो उसने अपने उसको विरोधी को कहा और वहाँ से चला गया। He hurried home straight away and said to his mother, "Mother, you
hidden from the name of my father all these years. Unless you tell me at once who my father is, you will see me dead." Then he told his mother what the young soldier had said. "I had been reason to hide the name of your father from you, my son," said Tanmay. "But I will tell you his name now," said Tanmay. "You are the son of the great Rustum, the shield of Persia." तो वो जल्दी जल्दी सीधे घर गया और उसने अपनी माँ को बोला कि आपने मेरे बाप का नाम इतने सालों से छुपाया हुआ है, तो अब आप मुझे एकदम से मेरे बाप का नाम बताओ, नहीं तो आप मुझे मरा हुआ देखोगी। और उसने अपनी माँ को वो सिपाही था जो उसने उसको ललकारा था लड़ने के लिए, उसके बारे में बताया कि उसने उसको क्या बोला। तो उसकी माँ ने उसको बोला इसमें कुछ राज था, कुछ बात थी, इसीलिए मैंने आपके जो बाप का नाम जो है वो छुपा के रखा था और मैं आपको बताऊंगी। और उसने कहा कि आप जो हो बेटे हो किसके, ग्रेट रुस्तम के, जिसको क्या बोलते हैं, जो शील्ड ऑफ पर्शिया भी बोलते हैं। When Sohrab heard these words, his heart was filled with pride. "Rustum, I am the son of Rustum. Oh, why did you hide this from me all these years? Let me now go and announce my father's name and fight my challenger." तो जब उसने ये सुना कि वो बेटा है किसका, रुस्तम का, वो इससे क्या बोलते हैं, गुरूर से उसकी छाती ना फूल गई, वो बहुत खुश हो गया। तो उसने बोला अच्छा आपने क्यों इतने साल से जो है मेरे बाप का नाम छुपा के रखा था, नहीं अब मैं जाऊंगा और बताऊंगा, जिसने मुझे चैलेंज किया है, ललकारा है लड़ाई के लिए, उसको मैं अपने बाप का नाम बताऊंगा। At dawn the next day, Sohrab met his challenger at the place of the combat and announced, "I am Sohrab, son of Rustum, the shield of Persia. I accept your challenge. Are you ready to fight?" तो जब वो दूसरे दिन उधर गया तो उसने उसको बोला, चैलेंजर जिसने उसको चैलेंज किया था, कि आ जाओ कि मैं आपको बताता हूँ, मैं सौरभ हूँ, मैं बेटा हूँ रुस्तम का जो शील्ड है पर्शिया का, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, क्या आप लड़ने के लिए तैयार हो? At the very sound of Rustum's name, Sohrab's opponent lost courage. He hastily withdrew his challenge. Such was the fear that Rustum's name inspired. बोलते जैसे ही उसने रुस्तम का नाम सुना जो सौरभ से लड़ना चाहता था, उसकी हिम्मत वहीं वो उसने हार दी और उसने अपना चैलेंज जो है वो विड्रॉ कर लिया। और उसने इतना ही डर था किसका, रुस्तम के नाम का ही इतना डर था। Sohrab returned home and said to his mother, "I must go in search of my father and find him. I shall set out at once." His mother begged him not to go away, leaving her alone. But finding his determined to go, she said, "How will you and Rustum know each other? Your father left me before you were born." सौरभ जो है जैसे घर गया वापस वहाँ से, और उसने अपनी माँ को कहा कि मैं जा रहा हूँ अपने बाप की तलाश में और उसको ढूंढूंगा और मैं जा रहा हूँ। अब उसने उसके बेटे को कहा कि आप मत जाओ, बहुत मिन्नतें की, मगर उसने कुछ नहीं माना, बोला मैं अकेली रह जाऊंगी। मगर सौरभ ने कुछ नहीं माना। अब उसने जब देखा कि नहीं सौरभ कुछ नहीं मान रहा है, वो डटा हुआ है अपने इस पे फैसले पे, तो उसने उसको बोला मगर आप लोग कैसे पहचानोगे एक दूसरे को? योर फादर, आपके बाप ने तब आपको छोड़ा जब अभी पैदा भी नहीं हुए थे। बट सौरभ वाज बीन ऑन गोइंग। "I will not return," he said, "unless I find my father." सौरभ मगर डटा हुआ था जाने के लिए। उसने बोला मैं तब तक नहीं वापस आऊँगा जब तक मैं अपने बाप को नहीं ढूंढ लूँ। आज के लिए इसलिए इतना ही, कल इंशाल्लाह बाकी कंटिन्यू करेंगे।